Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Arnath Singh from AIIMS, New Delhi. I was AIR 9 in NEET and AIR 11 in AIIMS, and after completing my MBBS from AIIMS New Delhi, I am pursuing neurosurgery from AIIMS New Delhi itself after cracking NEET PG as well as INICT. So इस वीडियो में, because पिछले वीडियो में मैक्सिमम कमेंट इस चीज़ पे आए थे कि कैसे आपको अपना फर्स्ट रीडिंग का रिटेंशन इंप्रूव करना है, राइट? That is the most disturbing thing that students encounter while preparing for NEET PG, because there are 19 subjects, you go through them, and if you're mindlessly reading without a plan in your head, right, and if you don't know the scientific way of how to grasp more in your first reading, then you will end up feeling discouraged and demotivated, and this is what majority of the students face, especially when they are starting off for a एग्जाम लाइक नीट पीजी. अब कोई ये नीट यूजी का एस्पिरेंट भी ये वीडियो देख रहा है, देन इट विल बी रेलेवेंट बिकॉज दे वुड वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द साइंटिफिक वे टू रीड एंड रिटेन बेटर. ओके, सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट योर फर्स्ट रीडिंग विल ऑब्वियसली will lead to lower retention. अपने expectation बहुत high नहीं रखना है आपको, because ये low retention does not mean you are less intelligent or you have low memory. It is all about a technique. It is a technique issue कि आपका first reading में आपका low retention हो रहा है. Okay, and first reading is definitely not for memorization. You have to understand that it is for concept mapping, structure building, as well as becoming familiar with the topic that you are going to dive into. Okay, it's like you are getting into a city, okay, going to a new city, so you will see the landmarks and you will see the major roads, but all the tiny things in the city, all the tiny details you won't remember, right? तो ये एक rough neural map create करता है आपका first reading. Okay, and guys, if you are someone who needs guidance for NEET PG preparation, then I'm offering free of cost guidance and hand holding through my Telegram channel, PG Prep by Dr. ARS. The link is given in the description below. I would urge all of you to come join the Telegram channel. There are about 2,400 students there right now, and it is growing every day, right? And I will be making more videos on step-by-step revision plan, subject-wise. I will also upload video on resources, आपको क्या क्या यूज़ करना है, then GT कैसे आपको प्लान करना है, एनालाइज करना है, एंड इंटर्नशिप के साथ कैसे आप नीट पीजी अपना मैनेज कर सकते हो. ओके, नाउ लेट्स डाइव इनटू इट कि यार सबसे पहले ये समझ लो कि देख फॉरगेटिंग कर्व क्या होता है. दिस वाज गिवन बाय एबिंगहॉस, एंड इफ यू गो थ्रू दिस, ओके, यू विल रीड अबाउट इट. मैंने समराइज कर दिया, एंड मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप भी बताना है अभी कि कैसे आप रिटेन कर सकते हो बेटर. ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे ना, ये कर्व देखोगे, तो देयर इज मेमोरी ऑन दिस साइड, यू हैव टाइम हियर, एंड ये रिटेंशन जो है इट ड्रॉप्स आफ्टर योर फर्स्ट रीडिंग. ओके, बट इफ व्हेन यू रिव्यू इट ना, तो कर्व बिकम्स फ्लैटर. ओके, इट कीप्स शिफ्टिंग टुवर्ड्स the 100% side as and when you review the topic. So this is normal brain biology, okay, and this does not mean that if you're forgetting that, then your IQ is poor, your memory is low, you are not capable enough of cracking NEET PG. And this is what a lot of students from private medical college or some far away government medical college, they think, because they're primed this way, राइट. दे थिंक कि यार सेकंड ड्रॉप थर्ड ड्रॉप में नीट यूजी क्रैक किया है, किसी मतलब मुश्किल से नीट नीट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं या फिर प्राइवेट से पढ़ रहे हैं, सो दे आर डम एंड दे कैन नॉट क्रैक नीट पीजी. नो, द प्रॉब्लम हियर is that you have to understand that retention is not equal to talent. Okay, you have to follow this AST cycle which is followed by most of the topper. अब AST cycle में क्या है? Active recall, spaced repetition, and T stands for test. अब ये कैसे आप execute करोगे step by step, मैं आपको बताने वाला हूँ. Okay, and you will be able to fight this forgetting curve. Okay, आप इसको इस साइड पुश करते रहोगे with each and every revision cycle that you perform. But revision cycle AST के साथ ही आपको perform करना है, and AST क्या है? Let me tell you. Okay, so your retention method comprises of 5 steps. Okay, there are 5 steps. First thing, what you don't have to do is do passive reading. A lot of students क्या करते हैं ना, they passively watch lectures and they feel productive. ठीक है कि यार BTR के लेक्चर ऑन कर दिए, जो मैम बोल रही हैं बस सुन रहे हैं, ठीक है, या फिर नोट्स हाईलाइट कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, दे आर फीलिंग प्रोडक्टिव, एंड या फिर रीड कर ले रहे हैं नोट्स, माइंडलेसली फ्लिप कर रहे हैं थ्रू द नोट्स, एंड दे फील कि उनका रिटेंशन इंप्रूव हो जाएगा. नो, अगर आप ऐसे करोगे देन दिस इज नॉट गना बी प्रोडक्टिव. आपको फील हो रहा है कि आप टाइम यूज कर रहे हो, बट आप बेटर यूज कर सकते हो. देखो, टाइम यूज कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो यार 8 से 10 घंटे, बट रिजल्ट में वो कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम रिमेंबर नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट एबल टू मेमोराइज इट. और मेमोराइज करने के लिए आपको पहला चीज क्या करना होता है कि जब भी आप नोट्स पढ़ रहे हो ना, या फिर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, पहले प्री रीड किया करो. दिस इज कॉल्ड प्री रीडिंग, एंड फॉर फर्स्ट 5 minutes you have to just register the heading, just flip through the entire content of the chapter. ठीक है, अगर सपोज आप BTR से पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई टॉपिक है,
या सपोज फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो गोविंद राय सर से, ठीक है, तो वो जो एंटीबायोटिक्स का टॉपिक है ना उसके सारे हेडिंग्स देख लो, ठीक है, उसके सब टॉपिक्स देख लो, जो भी डायग्राम्स है, कभी मेडिसिन का चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके जो फ्लो चार्ट्स है, एल्गोरिथम्स है, पर एक बार जस्ट स्किम थ्रू इट, एक बार देख लो कि क्या क्या कंटेंट है, एक रफ न्यूरल मैप आपके दिमाग में क्रिएट हो जाएगी, कंटेंट क्या आप डील करने वाले हो। दिस प्राइम्स योर ब्रेन फॉर लर्निंग एंड ग्रास्पिंग दैट कंटेंट। फिर आप पढ़ना शुरू करोगे। अब स्टडी ब्लॉक में आपको पढ़ना है, विच इज 50 and 10 में आप स्प्लिट कर लो या 40-20 में स्प्लिट कर लो। स्टार्टिंग में इट विल अपीयर डिफिकल्ट बिकॉज आपको हैबिट नहीं है ऐसे करने की, बट वंस यू गेट इनटू द ग्रूव ना यू विल अंडरस्टैंड कि कितना ये हेल्पफुल है इन ग्रास्पिंग द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक्टिव रिकॉल करना आपको ये लास्ट के 10 मिनट्स में। पहले 50 मिनट्स तो आप पढ़ने वाले हो, प्री रीड किया, आप कंटेंट से गो थ्रू हो गए इन 50 मिनट्स, जितना पॉसिबल है आपने रीड किया, देन आपको यू हैव टू क्लोज द नोट्स, ठीक है, ये लेक्चर बंद कर दो एंड देन क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू रिविजिट जो जो पढ़ाया गया है, एक्सप्लेन इट टू योरसेल्फ, या फिर यू शुड बी एबल टू रिकॉल इट ऑन पेपर। जो भी फॉर्मूलाज बताए गए हैं, निमोनिक्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, मेडिसिन के एल्गोरिथम है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, ठीक है, सर्जरी में कैंसर स्टेजिंग है, वो खुद से आप एक बार रिकॉल करो ऑन द पेपर एंड देन यू हाईलाइट एंड अंडरलाइन। पहली बार में जब आप पढ़ रहे हो ना ये 50 मिनट्स में, यू डोंट हैव टू हाईलाइट एंड अंडरलाइन, जैसे एज इन व्हेन यू रीड। कई स्टूडेंट ये चीज करते हैं, दैट बिकॉज आप मालूम ही नहीं आपको क्या है रेलेवेंस उस लाइन का, राइट, विच यू आर रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इफ यू हाईलाइट इट देन यू विल एंड अप हाईलाइटिंग अ लॉट ऑफ लाइंस विच विल बी यूजलेस। आपको उन चीजों को हाईलाइट करना जो एक्चुअली इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। तो जब आप रिकॉल कर रहे हो, जहां जहां स्टक हो रहे हो ना, और जो चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट, उन चीज को आपको हाईलाइट या अंडरलाइन करना है, ओके। एंड देन आपको माइक्रो रिवीजन प्लान करना है। अब जो सेम डे रिवीजन का कॉन्सेप्ट अपने लाइफ में आपको इंट्रोड्यूस करना है। इनफैक्ट आई फॉलो इट today also, even when I'm not studying, that at the end of the day I try to recall कि दिन भर में मैंने क्या किया in 5 to 10 minutes. Like, I just skim through the day and I try to recall क्या क्या किया, and that boosts your memory. Okay, आपको same day within that is 24 hours, 20 to 30 minutes you have to give to recall whatever you have read. And इसमें कोई deep reading नहीं करनी है आपको, फिर से चैप्टर लाइन बाय लाइन या वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना, because that is not possible. आपको फिर से 24 hours लग जाएंगे। वो सारे 50 मिनट्स के ब्लॉक आपको रिपीट नहीं करना है। जो भी हाई यील्ड रहा है उसमें, उसके थ्रू आप यू हैव टू स्किम एंड रिकॉल। जो भी फॉर्मूलाज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स थे, माइंड मैप्स थे, आपके फ्लो चार्ट्स थे, निमोनिक्स थे, वो बस एक बार आप क्विकली फ्लिप थ्रू देम, okay, and that is called micro revision for the day. And the same thing has to be done on weekends, that 3 to 4 hours you have to skim and recall whatever you have read through the entire week. For example, if you complete anesthesia, derma and psyche, ठीक है, 2 days each, then Sunday को आप बैठ करके सोने से पहले आफ्टर योर डिनर 4-5 घंटे दो एंड एनेस्थीसिया, डर्मा, साइकी में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने रीड की है जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, उसको एक बार रिविजिट कर लो, या फिर जो आप बार बार भूल जाते हो उसको रिविजिट कर लो, एंड दैट विल स्ट्रेंथन योर मेमोरी एंड वो चीज़ आपके दिमाग में एच हो जाएगी, राइट। एंड सिमिलरली अब इसके लिए मैं नया वीडियो बनाऊंगा, आई डोंट हैव टाइम इन दिस वीडियो, बट 3 to 4 रिविजन साइकिल फॉर इंटायर सब्जेक्ट और ऑल द 19 सब्जेक्ट आपको नीट पीजी से पहले करना है। आप जितने बार रिवाइज कर, देखो अभी तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आप टॉप तभी कर पाओगे पेपर में, आप अपनी ड्रीम ब्रांच, ड्रीम मेडिकल कॉलेज तभी अचीव कर पाओगे जब आप 3 to 4 कंप्लीट रिविजन साइकिल्स प्लान कर पाते हो बिफोर योर नीट पीजी एग्जाम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप अगर सोच रहे हो कि आप 6 महीने पहली रीडिंग को दे दोगे, बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, उससे आपका बहुत रिटेंशन नहीं बनेगा, आपको ये समझ में आ गया होगा, बिकॉज यू विल फॉरगेट थिंग्स ओवर टाइम, योर मेमोरी विल डिके ओवर टाइम। आपको बार बार रिवाइज करना है। तो एवरीडे बेसिस पे जब स्टडी ब्लॉक में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप माइक्रो रिवीजन तो कर रहे हो, वीकेंड पे आप थोड़ा मैक्रो रिवीजन किए, एंड देन यू हैव रिवीजन साइकिल जहां पे आप पूरे 19 सब्जेक्ट्स ना फिर से रिव्यू कर रहे हो और डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ टाइम में कर रहे हो, सो दैट आप फिल्टर्ड कंटेंट बार बार रिवाइज करो, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड फनलिंग, राइट, कि आपका इतना सारा कंटेंट, आप इतना सारा टाइम दिया पढ़ने के लिए, फिर नेक्स्ट रिवीजन साइकिल में 19 सब्जेक्ट्स के आपने कुछ चीजें फिल्टर आउट कर दी कि आप नहीं पढ़ने वाले हो, एंड देन यू विल रीड द मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड और फिल्टर आउट कर दिया फिर थर्ड रिवीजन में, एंड फाइनल 10 days में एक और रिवीजन का आपने स्प्रिंट किया एंड यू आर एबल टू टच ऑल द 19 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो दैट इज हाउ योर रिवीजन हैज टू बी प्लान्ड, दैट रिवीजन साइकिल for all the 19 subject 3 to 4 cycle, उसका क्या कैलेंडर होना चाहिए, I will discuss in the next video, so subscribe to the channel, okay, and और भी सारी वीडियोस मैं क्रिएट करूंगा, so please stay tuned. And one of the most important thing that I want to cover, with every subject that you finish or every topic that you finish, अगर उसका MCQ आपके पास है, then please practice it immediately, because this MCQ converts your theory into exam memory.
जो भी आप पढ़ रहे हो दैट बिकम्स एग्जाम रेलिवेंट ओनली आफ्टर यू प्रैक्टिस एमसीक्यू या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. एंड प्लीज, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज डोंट पोस्टपोन राइटिंग योर ग्रैंड टेस्ट. किस फ्रीक्वेंसी पे देना उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे. तो ग्रैंड टेस्ट देना या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, लाइक पास्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स का नीट पीजी का हो गया या INICT का हो गया, डोंट पोस्टपोन इट. इवन इफ यू आर फीलिंग अंडर प्रिपेयर्ड, प्लीज डू इट. बिकॉज जितना भी आपको रिकॉल कर पा रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप 40% ही याद कर पा रहे हो, प्लीज do MCQs on the basis of that. Take that leap of faith. Don't shy away from practicing MCQ. And even if you get them wrong, not an issue. अभी गलती कर लो so that वो तुम्हारे पेपर में गलत ना हो. Because you know कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या एटलीस्ट प्रीवियस ईयर टॉपिक के रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट. एंड रिव्यू करो, जो भी गलत कर रहे हो अभी रिव्यू करो. यू हैव टाइम राइट नाउ इन योर हैंड. सो गाइज, ओवरऑल आई वुड से कि प्लीज रिमेंबर, your memory is not weak, you are not less intelligent, you are not, don't think that you are incapable, you are dumb, you cannot crack exam like AIMS PG, INICT or NEET PG and get into your dream medical college with a dream rank in your dream branch. You're lacking in the first reading is primarily because first reading में आप सिर्फ रफ मैप क्रिएट करते हो, आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फर्स्ट रीडिंग में. और फर्स्ट रीडिंग को भी अगर आप स्ट्रक्चर्ड करते हो ना, जैसा मैंने बताया, राइट, 50-10 के स्टडी ब्लॉक में पढ़ना, एक्टिव रिकॉल करना, देन माइक्रो रिविजन प्लान करना उसका, देन मैक्रो वीकेंड रिविजन करना, देन रिविजन साइकिल्स प्लान करना, एंड टेस्ट इमीडिएटली दे देना या फिर MCQ इमीडिएटली प्रैक्टिस करना. दैट इज पार्ट ऑफ वॉट टॉपर्स डू फॉर enhancing their memory, and that is called AST, that is active recall, that you're reading actively, spaced repetition, आपने revision, micro, macro and then phases में revision plan कर लिया अपना, ठीक है, and then you are testing, that is your MCQ practice after every part of the syllabus that you cover. Okay, so all the best guys, keep hustling. You can tell me in the comment section किस वीडियो पे, किस टॉपिक पे आपको और वीडियो चाहिए. These are the things that I'm going to cover next, and also you should join my Telegram channel PG Prep by Dr. ARS. Link is given in the description below, and I will help you there with your NEET PG preparation. Okay, all the best.